ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਉਰਫ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਿਸ਼ਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਬਬੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, अंजू अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, अनु अग्रवाल, राहुल, गरिमा, साहिल, मानसी, अखिल, अंकिता, संचित, सुमेधा, आंचल, अर्पित, रुचि, राहुल, मोहित, नीति, रोहित, आंचल, मायरा, अविशा, सुहाना, दिवन्य, प्रांशु, अगम, रौनव, कनव, आरवी, जया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਨ 1937 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ BSc ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਈਸ ਸੈਲਰ ਲਗਾਏ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 10 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨਲਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਬਬੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। कोई बांधे जात जंजीर, अरे कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर के मालिया
उपस्थित शोक सभा एवं ज्ञान सभा में आज सभी आदरणीयों, माताओं, बहनों, भाइयों एवं सज्जनों, आज हम सभी यहाँ पर बड़े ही दुखित हृदय से इकट्ठे हो रहे कि आप श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं दिवंगत आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म प्राण आत्मा, परम आदरणीय परम चले स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी अग्रवाल, सुपुत्र स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जी अग्रवाल की दिवंगत आत्मा का चित्र अब सभी के सामने विराजमान है कि ये नेक आत्मा, ये धार्मिक आत्मा आज से कुछ दिन पहले अपने नश्वर शरीर का परित्याग करते हुए संसार की यात्रा को पूर्ण करते हुए इस संसार को, इस अग्रवाल परिवार को हमेशा हमेशा के लिए बिछोड़ा देकर के चले गए। बाकी सच्चाई यही है संसार में, आप सभी ज्ञानवान हो और मैं भी कोई नई बात नहीं कर रहा, सब जानते हो कि परमात्मा भाई जिसे जन्म देता है उसे मौत भी जरूर देता है। और क्यों कहते हैं कि जो भी संसार में आया अरे जाने के लिए, अरे जो भी संसार में आया जाने के लिए विचार करना, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों में यही ज्ञान दिया है कि परमात्मा जिसे मनुष्य का चोला देता है, एक ना एक दिन उस मनुष्य के चोले का त्याग करना पड़ता है। और क्यों कहते भाई कि जाने जाने के भी कारण बनते हैं, बहाने बनते हैं। अरे जाने जाने के भी कारण बनते हैं, बहाने बनते हैं। तो राजेंद्र जी का क्या कारण बन गया कि अचानक ही अपने परिवार को, अचानक ही अपने परिवार को अरे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ा देकर गए। जरा विचार करना कि ये अग्रवाल परिवार ये नहीं जानता था कि इस तरह से पिताजी हमें छोड़ करके चले जाएंगे। क्यों कि ये परिवार पहले मां के प्यार से वंचित हुआ कि पहले मां का चले जा, आज उस पिता का भी चले जाना कि पहले ये परिवार मां के प्यार से वंचित हुआ, आज पिता के प्यार से भी वंचित हो गए। परिवार नहीं जानता था कि हमें छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि एक पल दे विच की हो जाना, ध्यान देना इस शब्दों पर, कि एक पल दे विच की हो जाना, ए गल किसे ना जानी सी, मां पिता दे वास्ते शरवण लैन गया जग पानी सी, हथ विच गड़नी पड़ी रही, लगा कलेजे तीर जी, कि कदे मिटाया नहीं मिटदी, जिहड़ी लिखी गई तकदीर जी। ये सब भाग्य का खेल है। यही भाग्य में परमात्मा ने लिखा होगा कि अचानक अपने परिवार को ये छोड़ करके जाएंगे। बड़ी ही धर्मपरायण आत्मा, बड़ी ही नेक आत्मा, भाई इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। जैसा परिवार वालों ने बताया कि पिताजी नित्य कर्म करने वाले थे, नित्य कर्म। वैसे ही जरा ध्यान देना, हमारे बनिया परिवार ने सबसे ज्यादा नित्य कर्म बतलाया है, सबसे ज्यादा। क्यों? संस्कार किसके दिए हुए हैं? अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के।
बड़े बुजुर्गों ने अरे बच्चों को शिक्षा दी है कि सुबह उठ करके पहले परमात्मा को याद करो, नहा धो करके मंदिर जाओ और अपना पूजा पाठ करो। तो दिवंगत आत्मा, अरे इनका भी तो यही कर्म बताया गया कि नित्य कर्म करना, धर्म कर्म करने। तो जरा विचार करना, देखो परमात्मा ने मृत्यु कैसी थी कि फटाफट अपने साथ में लेकर के गए। भगवान फटाफट अपने साथ में लेकर के गए। विचार करना, ज्यादा तड़पना नहीं पड़ा, चार पाई पर ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा। क्यों भाई? ये धर्म कर्म के कारण, नित्य कर्म के कारण, पूजा पाठ के कारण। और इसलिए कहते हैं कि महापवित्र गरुड़ पुराण में भी सच्चाई बतलाई गई। भाई तुम ऐसे कर्म कर कि अंत समय में तुझे तड़पना ना पड़े, तुझे दुख ना भोगना पड़े, तू संसार से चलता चलता चला जाए, ऐसी मृत्यु हो। विचार करना, कहीं आते हैं हमारे पास कुंडलियां दिखलाने के लिए, क्या कहते हैं? पिताजी बीमार हैं, कई वर्षों से चारपाई पर पड़े हैं, कई वर्षों से मल मूत्र बीच में त्याग रहे, पंडित जी कोई उपाय बता दो। विचार करना, वो उसका भाग्य है, वो चारपाई पर पड़ा। और दूसरी तरफ एक अच्छा भाग्य है कि चलते चलते संसार से चले जाना। और इसलिए आज दुख है इस अग्रवाल परिवार को, दिवंगत आत्मा को जाने का। तो आज इकट्ठे हो रहे हैं इस परिवार में क्या करने के लिए? भाई श्रद्धांजलि देने के। तो आओ अपनी इस जीवा को पवित्र करते हुए प्रभु राम के नाम का सिमरण उस दिवंगत आत्मा के प्रति करें, सब मिलकर बोले, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। भजन प्यारे राम का नाम, भजलो जपलो प्यारे राम का नाम, जपलो
हनुमत प्यारे कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के पतित पावन सीताराम पतित पावन कहलो श्री राम जय राम श्री राम। तो यहाँ पर आए ना भाई अपना कीमती समय निकाल करके क्या करने के लिए? राम नाम की श्रद्धांजलि देने के लिए। तो विचार करना श्रद्धांजलि कहते किसे हैं? ये नहीं कि तस्वीर के आगे 10 या 20 में माथा टेका, परिवार वालों के आगे हाथ जोड़े और जाकर के चुपचाप बैठ गए, उसे श्रद्धांजलि नहीं, उसे कहते हैं एक चेहरा दिखाना। विचार करना समस्त रिश्तेदारों को क्यों इकट्ठा किया जाता है, सबको क्यों मिलकर के बुलाया जाता है कि सब मिल करके कुछ समय निकाल करके उस दिवंगत आत्मा के प्रति परमात्मा से क्या करे? प्रार्थना करे, अरदास करे। तो जरा विचार करना, अगर आज हम किसी के प्रति अरदास करेंगे, ये मत भूलना कि कल को हमारा समय नहीं आएगा। अगर आज हम किसी के प्रति अरदास करेंगे तो कल को कोई हमारे प्रति भी अरदास करेगा। इसी तो लिख दिया कि पहला संसार विचयो दुखिया जिले भरना खेडदा पाल होवे, दूजा संसार विचयो दुखिया जिले फल गुलछणी नार होवे, तीजा संसार विच ओ दुखिया जेड़ा थां थां ते कर्जदार होवे, चौथा संसार विच ओ दुखिया कि जिदा राम ते नाल ना प्यार होवे। कहलो श्री राम जय राम श्री राम। अरे इसे तो कहते हैं कि जो प्रभु राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। रमान पढ़े तो ज्ञान देती है कि राम नाम मुद मंगलकारी ते विघ्न हरे सब बात कहारी, के विघ्नों को दूर करने वाला। केवल राम का नाम बतलाया गया और श्रद्धांजलि भी प्रभु राम के नाम की बतलाई, इसलिए कहते हैं कि ऐ इंसान तुझे फुर्सत ना होगी कभी काम से। विचार करना कि ऐ इंसान तुझे फुर्सत ना होगी कभी काम से, कि कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो प्रभु राम से। विचार करो राम का नाम जीते जी भी काम आता है और मरने के बाद भी काम आता है। इसी तो लिख दिया के भरी जा भावे लाख खजाने नाल तरे कुछ जाना नहीं, हरि नाम दे भजन बिना तेरा किसे साथ निभाना नहीं। कह लो श्री राम जय राम श्री राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत
श्री राम जय राम जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र महाराज की जय। दुर्जावन जग पात मुड़ के लपड़े नहीं, पाप लवर के होर सहारे लपड़े नहीं। दुर्जावन जग पात मुड़ के लपड़े नहीं, दुर्जावन जग पात मुड़ के लपड़े नहीं। पापी हल्ला शेरी शेर बड़ा जाती, गलत थापी मार दलेर बड़ा जाती। तो जरा विचार करना कि पिता का साया सिर पर होना बड़ा जरूरी है। क्यों कहते हैं कि पाप दी हल्ला शेरी शेर बड़ा जाती। जब पिता का साया सिर पर होता है, हम अपने आप को शेर नहीं बब्बर शेर समझते। क्यों? जब एक पिता अपने कंधे पर हाथ रखता है तो हमारी दलेरी और बढ़ जाती है। जब वो हाथ उठा दे तो हम कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि बड़िया मोजा जड़ियां बापू दे सिर ते कीतियां। आज कमी है इस परिवार को, इसे तो लिख दिया। बापी हल्ला शेरी शेर बड़ा जाती, कणत थापी मार दलेर बड़ा जाती। बाबल वर्गे होर सहारे लपड़े नहीं, बाबल वर्गे होर सहारे लपड़े नहीं। दुर्जावन जद बाप पे मुड़ के लपड़े नहीं, दुर्जावन जद बाप पे मुड़ के लपड़े नहीं। बामरण ते वेले सुनते हो जाते, जाते जाते खुले मुहे तो जाते। बामरण ते वेले सुनते हो जाते, जाते जाते खुले मुहे तो जाते। कदे भी लोग पराए नेड़े लगते नहीं, कदे भी लोग पराए नेड़े लगते नहीं। दुर्जावन जद पाप मुड़ के लपड़े नहीं, दुर्जावन जद पाप मुड़ के लपड़े नहीं। दुर्जावन जद पाप मुड़ के लपड़े नहीं। अब इस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे हमारे बड़े भैया, हमारे गुरुजी, परम आदरणीय प्रभु श्रीमान पंकज पाठक जी। हरि ओम शांति शांति शांति। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। के श्वास श्वास सिमरन करो,
वृथा श्वास मत खोए, कि ना जाने फिर श्वास का आवन हो ना हो। के रात गवाई सुत्या, के दिन गवायो खाए, हीरे जैसा जन्म था तेरा कोटि बदले जा। उपस्थित शोक सभा में आए हुए आदरणीय माताओं, सज्जनों, बहनों और भाइयों, आज की इस शोक सभा में बड़े ही दुखी हृदय से श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं दिवंगत आत्मा परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। आज उनको हम श्रद्धांजलि, राम नाम की श्रद्धांजलि। तो सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा, ये जो वेटर चाय कॉफी और पानी लेकर के आ रहे हैं, ये बाहर रहे। भैया बाहर चले जाओ, पानी वाले, कॉफी वाले। ये कॉफी पीने की जगह नहीं है, पानी पीने की जगह नहीं है। जिन्होंने पीना है बाहर पी लेंगे। ये श्रद्धांजलि सभा है, यहाँ पर पानी का कॉफी का कोई काम नहीं है। जिनको इच्छा है वो बाहर जाकर के पी लेंगे। हम करने क्या आए हैं यहाँ पर? चाय कॉफी पीने नहीं आए, हम राम नाम की श्रद्धांजलि। बाहर व्यवस्था है, पी, कोई कमी नहीं है, बड़ी अच्छी व्यवस्था परिवार ने की है। ये स्थान है, यहाँ बैठ करके 2 घड़ी हम उस प्रभु को याद करें, उस आत्मा के प्रति उनके लिए मांगे, भगवान के आगे कहें कि प्रभु उन्हें शांति देना। अपने लिए तो सारे ही मांगते हैं। यहाँ पर हम समय निकाल करके 1 से 2 बजे का समय है, 1:30 बज चुके हैं, और इसको भी चाय कॉफी पीने में लगा दिया तो क्या फायदा यहाँ पर आने का। राम का नाम लें 2 घड़ी बैठ करके, क्योंकि एक आत्मा संसार को छोड़ करके गई, परिवार को छोड़ करके गई, जो कितनी नेक आत्मा थी, कितना अच्छा अपना जीवन बिता करके गई। हमें तो शिक्षा लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी आत्माएं आती रहे संसार में। प्रातः काल 2 बजे उठना, उठ करके नहा धो करके पाठ पर बैठ जाना, 4 बजे मंदिर में जाकर के पंडित जी को भी उठाना, उठिए मंदिर के कपाट खोलिए, प्रभु का दर्शन करना है, पूजन करना है। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा हो जो जाकर के उठाता हो पंडित जी को, लेकिन वो उठाते थे। 7 बजे तक मंदिर में पूजा पाठ करना, देखो प्रभु की कितनी कृपा। बिल्कुल स्वस्थ, ना कोई रोग ना कोई बीमारी, इसलिए ही चलते चलते चले गए। 4 पाई पर पड़े ही नहीं, ना 4 पाई पर पड़े, ना दुख सहन किया, ना किसी को दुख दिया। एक हफ्ता भी अगर कोई 4 पाई पर पड़ जाए, घर वाले भी चिंता में पड़ जाते हैं उपाय पूछने। अभी भी छोटे भैया कह रहे थे, बड़े फोन आते हैं। अभी भी 2-3 मैसेज मेरे मोबाइल पे है, रास्ते में मैं आ रहा था कि ऐसे ऐसे बीमार हैं, क्या करें। लेकिन ये नेक आत्मा देखो, किसी से कोई सेवा भी नहीं करवाई। क्यों? बड़े ही लायक थे वो। सारा जो जीवन था, कारोबार भी किया, लेकिन भगवान के प्रति भी समर्पण था।
भगवान के प्रति भी आस्था थी, श्रद्धा थी, इसलिए प्रातःकाल 2 बजे जाग जाते थे। है कोई भी नहीं जागने वाला होगा, इधर तो नींद सबको बड़ी प्यारी है और सारे कहते हैं 2 बजे तो बढ़िया नींद आती है, लेकिन त्याग कर देना चाहिए प्रातःकाल। प्रातःकाल उठ करके वो देव स्नान करते थे। स्नान भी 3 तरह का बताया है, देव स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। और आजकल लोग करते हैं राक्षस स्नान, क्योंकि सूर्य चढ़ जाता है सिर पर 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे और 12 बजे मंदिर में सूर्य को जल देते हैं। ये है, ये सच्चाई है। 12 बजे हमारा मंदिर हमने एक दिन बढ़ा दिया, बंद कर दिया, तो 12:15 1 आए कि पंडित जी मंदिर खोलो, जल चढ़ाना है। मैंने कहा नहीं प्रभु अब आराम कर रहे हैं, समय निकल गया। 12 बजे सूर्य को जल देते हैं जब वो शिखर पर आ जाता है। ये है लोगों की दिनचर्या। लेकिन आदरणीय राजेंद्र जी, प्रातःकाल 2 बजे उठना, पाठ करना, फिर मंदिर में जाकर के भगवान को समय देना। हम कितना देते हैं? जल चढ़ाया, पंडित जी अगर चरणामत देने के लिए कहें कि बैठो, बैठने का समय भी नहीं, खड़े खड़े चरणामत लिया। अब पंडित जी मंत्र क्या पढ़ेंगे कि अकाल मृत्यु सर्व व्याधि नाशनम, पहले ये मंत्र पढ़ते थे, उनको मंत्र पढ़ने का समय ही नहीं मिलता, लोग जल लेते हैं, साथ में ही निकल जाते हैं, समय ही नहीं। लेकिन ऐसी नेक आत्माएं भी कोई होती है, जैसे हमारे राजेंद्र जी ने कारोबार भी किया, भगवान को भी समय दिया और कितना अच्छा अपना जीवन बिता करके गए। 87 साल की आयु में भी 60 साल की तरह उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल अच्छे भले, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। रोग बीमारियां क्यों हैं? चिंताएं लग जाती हैं, बच्चे नालायक हैं, तब जाकर के रोग बीमारियां चिंताएं लग जाती हैं। कोई किसी चिंता से ग्रसित है, लेकिन ये बच्चे बड़े लायक हैं, कोई चिंता ही नहीं थी पिता को, क्योंकि जो संस्कार उन्होंने दिए थे वो इनमें है। इसलिए सभी इकट्ठे हो रहे हैं, सभी आ रहे हैं अपना 3 दिन समय निकाल करके श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे आदरणीय पवन चोपड़ा जी का फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गए हैं, आपने जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, समय निकाल करके जरूर जाएंगे। इनके माध्यम से हमें जुड़ने का मौका मिला इस परिवार से। शाह जी के नाम से उन्हें जानते हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी, शाह जी। शाह, देखो शाह भी हर कोई नहीं बन सकता। ये संबोधन भी उसी को होता है जो उसके लायक होता है। आज हम यहाँ पर आए हैं एक भी समय निकाल करके, जितने भी आगे पीछे बैठे हो, सबसे मैं कहूंगा मेरे साथ मिलकर के 2-4 बार प्रभु के नाम का सिमरन करो सभी ने, क्योंकि किसी की जीवा ऐसी ना हो जो प्रभु के नाम का सिमरन ना करे। सबने मेरे साथ मिलकर के कहना है, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे हरे। मैंने सबसे कहा है, माताएं, बहनें, बुजुर्ग भाई, सबकी आवाज आनी चाहिए। जो कुर्सियों पर भी बैठे हो, सब मिलकर के कहो, हरे राम हरे। नाम लेने में संकोच मत किया करो, ये नाम है, नाम लेने में संकोच कैसा? ये जीते जी भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है। सबकी आवाज आए, सब मिलकर के कहो, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम। यही श्रद्धांजलि उन्हें मिलेगी राम नाम की। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
रामा राम राम हरे 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 राम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बाकी जाना तो सबने है, कौन नहीं गाया। चलंती ब्रह्मा चतुर्वेद भाष्यम चलंती राजा छत्रम चलंती। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके सर पर छत्र शोभा करते थे वो भी नहीं रहे, सबने जाना। तो महापुरुषों ने क्या लिखा है कि लक्ष्मण जैसे योद्धा तुर गए, कंस जैसे अभिमानी, दुर्योधन जैसे कपटी तुर गए, और सीता जैसी रानी के बाल हकीकत धरनी तुर गए, हरिश्चंद्र जैसे दानी के जो राम इस जग विचरणी, तेरी चंगी प्रेम मंदी कहानी। रहता क्या है, यही रहता है। आज अच्छाई को याद कर रहे हैं। राजेंद्र जी की कितने अच्छे थे। कहते हैं मरने के बाद लोग जिसकी प्रशंसा करें आंसू बहाए वो कहाँ गया स्वर्गों में। मरने के बाद लोग कहें अच्छा हुआ मर गया, धरती पर बोझ था, गंदगी का कीड़ा था, वो कहाँ गया नरकों में। तो ये जीवन खुद हम ही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता। वो अपना अच्छा जीवन बना करके गए, क्योंकि उनके ही नाम आज दुनिया में छाए हैं। नेकी के महल जिन लोगों ने बनाए हैं, दुनिया उन्हें ही याद करती है जो कुछ करके जाता है। आज उनको हम याद कर रहे हैं क्योंकि वो लायक थे, याद करने के लायक हैं। बाकी जाना सब नहीं है। सदा रहने के लिए ना ही कोई आता है ना ही कोई आएगा। तो क्या लिखा है महापुरुषों ने, सफर जिंदगी दा जदों है मुक जाना, सुते पे आयसी फिर उठना नहीं, चिट्टी चादर दी मारनी बुकल उदों कि तुर पिया किसे ने भी पूछना नहीं, कि सालों किसे ने जाते रोकना नहीं, असी किसे ने रोकिया रुकना नहीं, कि 4 दिन दी पैनी है राम रोली, तेरे नाम किसे ने भी पूछना नहीं। हरे राम 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 हरे हरे। सब मिल करके बोलो हरे राम राम हरे हरे। गोस्वामी कहते हैं बाबा तुलसीदास जी की जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सो कोई। जिस पर करे राम की कृपा है वही नाम लेता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से निकलता है, हम ले ही नहीं पाते। लेना चाहिए ये नाम हमें। हरे राम राम
राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यही नाम की श्रद्धांजलि होती है। आज हम सब उछी हुई आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आए हैं। उनको मैं कई बार मिली, बहुत ही सरल प्रवृत्ति के, बहुत ही अच्छे थे वो, और बड़े साधक प्रवृत्ति के थे, साधना करते थे। अपने शरीर को उन्होंने निकम्मा नहीं होने दिया, और बराबर उनका एक नियम था, बार बार बताया गया कि प्रातःकाल अमृत वेला में उठना, भजन करना, सुमिरन करना, मंदिर की सेवा करनी और बड़ा स्वस्थ जीवन जिए, और हमेशा सबसे बड़ी बात प्रसन्न रहना, खुश रहना। जीवन में कठिनाइयां भी आई, मुश्किलें भी आई, पर सब पार कर गए अपनी सरलता और पवित्रता के ताकत से। तो आदमी के जीवन में सबसे बड़ी बात है सरलता, पवित्रता और अपना धर्म, उस पे कायम रहना। तो हम सब आज ये आत्माएं मिलके परमात्मा के चरणों में यही दुआ करते हैं, हे प्रभु आप उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए। इतनी बड़ी पवित्र आत्मा आपके पास चले गए, सहजे ही चले गए, आह भी नहीं करी, कोई कष्ट नहीं हुआ उनको। जितनी हम प्रीतम को याद करते हैं वो हमसे दूर नहीं है, हम ही दूर है, वो हमसे दूर नहीं है। तो उन्होंने हल्का सा हमको कष्ट हुआ और वो चले गए। तो मैं तो गुरु महाराज जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना करती हूँ, शहंशाह आप नरेश जी के पिताजी को अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। वो बड़े पवित्र थे, बहुत ही शुद्ध थे, बहुत ही अच्छे थे। तो उनको अगला परलोक में भी उनको उतना ही सुख मिले, शांति मिले। सबसे बड़ी बात है कमी परिवार को होती है। तो परिवार जो सात्विक है, पवित्र है, बड़ों की कदर करता है, बड़ों की सेवा करता है, उसको कभी कमी नहीं आती। क्योंकि बुजुर्ग को आप एक बार प्रणाम करते हो, आपको 10 बार आशीर्वाद देता है। तो बड़ों के आशीर्वाद कभी बेकाम नहीं जाते, काम आते। तो इसलिए ये परिवार, इनके ऊपर गुरु महाराज जी का हाथ है, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा, दयालुता है सभी बहन भाइयों पर। सभी बच्चे इनके बहुत आज्ञाकारी, बहुत अच्छे लायक बच्चे हैं। गुरु महाराज जी उनको समृद्धता बख्शे, ताकत बख्शे, और परिवार इसी तरह हंसता खेलता हुआ अपना जीवन गुजारे। मैं इतना कह के गुरु महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये हयात मिसल है शम्मा की, कभी बुझ गई, कभी जल गई, कभी रूह तन में समा गई, कभी रूह तन से निकल गई। प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसको अवश्य जाना है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर भाव से दर्शा दिया है कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला जीव कभी नीच योनियों में नहीं जाता। जिस प्रकार दर्जी कपड़ा सीते सीते रात्रि को सो जाता है, तो सुबह उठकर वो वहीं से शुरू करता है जहां उसने रात्रि को समाप्त किया था, और इस प्रकार एक सुंदर चोला तैयार कर लेता है। ये ऐसे ही हमारे परम आदरणीय बाबू जी, जिन्हें शाह जी के नाम से आप सभी परिचित हैं, उन्होंने भी अपने जीवन को न केवल अपना जीवन सफल किया, परिवार में भी प्रभु प्रेम का, गुरु प्रेम का
बीज बोया और उनका विश्वास इतना दृढ़ किया कि वो इधर उधर कोई भी जीवन में घटना आती है तो वो उससे विचलित नहीं होते। सब कहते हैं कि ये हमारे प्रभु की कृपा है, वो ही जाने, वो ठीक कर देंगे। हमें बहुत कुछ इनसे, नरेश जी से, दीपक जी से जब मिलते हैं तो इनके विश्वास को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि ये सब बाबू जी का दिया हुआ प्रसाद है इनको, जो एक अनमोल निधि है जो इनको प्राप्त हुई है। बाकी संसार में 1 मिनट का समय लूंगा। संसार में तो यही है, ईरान के बादशाह जब 95 की एज में जाने लगे तो उन्होंने अपने मुल्क के जो फिलोसफर थे उनको बुलाया कि मैंने सारा जीवन जी लिया और अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बताओ कि व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द लाइफ। तो वो कहने लगे कि आपने इस समय मुझसे पूछा है, ये तो बहुत लंबा विषय है, आप मुझको समय दीजिए। वो कहने लगे मेरे पास समय नहीं है, मैं तो घंटे 2 घंटे का मेहमान हूँ, मुझे ये बताइए कि जीवन का फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है संसार में आने का। तो उन्होंने भी एक लाइन में बहुत सुंदर बताया कि जीवन की फिलॉसफी ये है, इंसान जन्म लेता है, सुख दुख भोगता है और फिर जैसे आपकी स्थिति है ऐसी स्थिति में आकर चला जाता है। बहुत ही भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें प्रभु शरण प्राप्त होती है, जीवन का मकसद प्राप्त होता है, अपने कर्मों को पहचान होती है और एक सुंदर सा रूप लेकर इस संसार से जाते हैं। मैं श्री नंगली दरबार सेवा समिति की ओर से, जहां नरेश जी और दीपक जी बहुत सक्रिय तौर पर सेवा करते हैं और गुरु दरबार से जुड़े हुए हैं, मैं पूरे समिति की ओर से पूज्य बाबू जी के चरण कमलों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। किसी शायर ने लिखा है कि ये मत पूछ कि वो क्या ले गया, ये तो फिजूल की बहस है कि वो छोड़ क्या गया, इतनी अच्छाई लेकर। प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, यही हम प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। बाकी बुजुर्ग बड़े ही जरूरी हैं जीवन में। एक छोटी सी बात कहूंगा, एक पोते की शादी थी, दादे को बड़ा शौक था, लड़की वालों ने शर्त रख दी कोई बूढ़ा नहीं आएगा। अब दादा गए, बस की छत पर चढ़ गए, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मेरे पोते की शादी। अब लड़की वालों ने शर्त रख दी नदी को दूध से भरो। अब लड़के का पिता भागा भागा अपने पिता के पास आया, बस की छत से उतारा, पिताजी लड़की वालों ने कहा है नदी को दूध से भरो। पिता ने आगे जवाब दिया, मूर्ख जाकर के कहो पहले खाली तो करो। अब लड़के का पिता भागा भागा लड़की वालों के पास आया, कहने लगा आपने ये तो कह दिया कि नदी को दूध से भरो, अरे पहले इसे खाली तो करो। अब लड़की वालों ने कहा, कहाँ है बुजुर्ग, ये आपका दिमाग नहीं है, ये स्तंभ है घर के, इन्हीं से घर खड़ा है। इसलिए बड़े जरूरी है जीवन के अंदर, हम कितने भी पढ़ लिख क्यों ना जाएं, MBA कर ली, LLB कर ली हमने, लेकिन जो उन्होंने किया हम सोच भी नहीं सकते। जो मेहनतें उन्होंने अपने जीवन में की हैं, पेड़ उन्हीं के लगे हैं, फल हम खा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना, जो मेहनतें उन्होंने की हैं। तो आज उनके जाने का दुख जो परिवार को है, तो भगवान सहन करने की शक्ति दें। प्रार्थना सभी मिलकर के हमने की है, प्रार्थना करनी भी चाहिए, क्योंकि वृथा ना जाए जन की अरदास। क्यों आते हैं, यही अरदास करने के लिए। तो प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, शांति दें, सदगति दें। बोलिए शंकर भगवान। प्रार्थना है सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। नरेश जी, दीपक जी प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी ऐसे नहीं जाएगा, चाय का प्रसाद सबके लिए है, लेकर के जाएंगे। भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। अग्रवाल परिवार आपका बड़ा ही आभारी है, आभार प्रकट करता है कि आप हमारी दुखमयी घड़ी के अंदर आए हैं, हम आपके बड़े ही आभारी हैं। अब जिन्होंने पगड़ी देनी है वो मंच के पास में आकर के बैठ जाएं, क्योंकि गले में डालेंगे, बांधी तो
आगे चल करके है। जिन्होंने पगड़ी देनी है वो मंच के पास में आकर के बैठे। आइए मिलकर के भगवान की आरती, सभी मिलकर के भगवान की आरती करेंगे। जिन्होंने पगड़ी देनी है वो मंच के पास में ही आकर के बैठे। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से सुख संपत्ति घर आवे बंसारी वाला घर आवे कष्ट मिटे धन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल खामे मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो।